morning and welcome students. Today we are going to start lesson number 2.5, The Silver House. It's a poem. It is about the moon and the poet has explained about the moon out in this way. Okay. There is a silver house in the lovely sky as round as silver crown. It takes 2 weeks to build it up and 2 to pull it down. There is a man who lives in the silver house in a lonely sort of way, but what his name is no one knows or no one likes to say. Yet when you go to bed tonight, just draw the window blind and peep out at the silver moon, this lonely man to find. But if his house is taken down and all the sky is bare, then go to bed because of course the poor man won't be there. The poem written by John Lee. Okay. Here he has mentioned about the silver house. That is the moon. There is a silver house in the lovely sky. He is saying that there is a silver house. Explaining about the moon, there is a silver house in the lovely sky as round as silver crown. It is as round as silver crown. एक crown की तरह, ताज की तरह वो गोल आकार में है. It takes 2 weeks to build it up and 2 weeks to pull it down. What is saying? It takes 2 weeks to build it up. मतलब उसको 2 हफ्ता वो चांद पूरा रहता है और 2 हफ्तों में धीरे धीरे कम होते होते पूरा चांद आपको नज़र नहीं आता है. तो 15 days इट्स अ फुल मून डे एंड 15 days इट्स अ न्यू मून डे जहाँ पे आपको चांद नहीं नज़र आता है. तो इस एक्सप्लेनिंग उसको बिल्ट होने को हम 2 हफ्ता लगता है और उसको छोटे छोटे होते जाने के लिए उसको 2 हफ्ता मतलब धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते पूरा चांद हो जाता है. उसको 2 हफ्ते लगते हैं और धीरे धीरे वो पूरे चांद से कम होते 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 पूरा गायब हो जाता है. आसमान में आपको नज़र नहीं आता. सो द पॉइंट इज सेइंग इट टेक्स 2 weeks to build it up and 2 weeks to pull it down. There is a man who lives in the silver house in a lonely sort of way. The poem part is saying that he feels that there is a man in the moon. उनको देखते हुए उनको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे एक चांद में एक इंसान रहता है. In a lonely sort of way मतलब अकेला वो वहाँ पे रहता है. There is a man who lives in the silver house in a lonely sort of way, but what his name is no one knows or no one likes to say. The poet is saying that there is a lonely man in the silver house. एक कोई इंसान एक सिंगल अकेला इंसान वहाँ पे होता है. उसका नाम क्या है किसी को नहीं पता, ना ही कोई जानना चाहता है कि उनका नाम क्या है. Yet when you go to bed tonight, just draw the window blind and peep out at the silver moon, this lonely man to find. बट इसके बावजूद भी जब आप सोने जाते हो और आप खिड़की के विंडो ब्लाइंड मतलब खिड़कियों से जब आप झांकते हो ऊपर देखने की कोशिश करते वहाँ पे देखते हो कि वहाँ पे सिल्वर मून में वो लोनली मैन है कि नहीं. यू ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द मैन इज देयर और नॉट. और उस इंसान को आप ढूंढने की कोशिश करते हो. But if the house is taken down and all the sky is bare, then go to bed because of course the poor man won't be there. But if the house is taken down मतलब अगर समझो वहाँ पे आपको चाँद नहीं नज़र आता है और आसमान सूना है मतलब जहाँ पे चाँद नहीं है, तो आप लोग क्या करो उसको देखने की कोशिश मत करो और आप जाके सो जाओ बिकॉज इट इज़ अ स्लीपिंग टाइम, इट्स अ बेड टाइम. बट इफ़ द हाउस इज टेकन डाउन एंड ऑल द स्काई इज बैक मतलब खाली सूनापन. ओके, देयर इज़ नथिंग ओवर देयर. तो अगर आपने खिड़कियों से झांकने की कोशिश की और आपको वहाँ पे चांद नज़र नहीं आया, इसका मतलब है कि वहाँ पे चांद नहीं है. तो आप उसको ढूंढने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि अब ये सोने का वक्त है और आप लोगों को सबको सोने चाहिए क्योंकि ये इट्स अ बेड टाइम. तो वहाँ पे आपको चांद भी नहीं होगा. तो चांद में जो इंसान हम लोग महसूस करें जिस तरह वो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे चांद में इंसान है, तो वो अगर चांद नहीं है तो नेचुरली यू कैन सी दैट पर्सन ऑल्सो.
तो ये चांद के बारे में कहा गया है, द सिल्वर हाउस। द पोएट इज जॉन लीव। So this is what एक समरी दे रही हूँ आप लोगों को। The poet is talking about the moon. He explained moon as a silver house in the beautiful sky. Okay, it is as round as a silver coin or crown. Crown मतलब आप ताज आपको समझ में आता है, तो ताज की तरह वो राउंड है। It takes 2 weeks to build it up and 2 weeks to pull it down. It is saying. And he also says that there is a man in the silver house and he looks lonely. Lonely लगता है मतलब because he is the only person over there and nobody knows his name and nobody is bothered to know his name. So when you go to your home after you're having your food and all the sleeping time, you just like to peep out of your window. आप झांकना चाहते हो खिड़की से ही देखने के लिए, चांद देखने के लिए, पर आपको वहाँ पे चांद नज़र नहीं आता है। और चांद में जो इंसान, आप ऐसे एज्यूम करते कि चांद में वो एक आदमी है, वहाँ पे इंसान है, तो नेचुरली इफ द मून इज़ नॉट देयर यू वोंट फाइंड दैट मैन ऑल्सो। तो आप लोग इतना इसको निराश मत हो जाइए, हताश मत हो जाइए। आप इट इज़ अ स्लीपिंग टाइम, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी द मून और द मैन ओवर देयर, जस्ट गो टू बेड, हैव अ गुड स्लीप। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है अबाउट द सिल्वर हाउस, दैट इज़ द मून। ये पोएटिक वे रहता है, कवि अपने कविता के द्वारा इस तरह वो चीज़ को इतने एकदम ये बनाते, प्रभावित लोगों को सुनने जैसे या एकदम एट्रैक्टिव बना के आपके सामने पेश करते पोएम को, ताकि लोगों को पसंद आए। Now see, crown or silver coin that are used in England in the past. Window blind, a protective covering from the window. Window blind वो बोलते हैं ऊपर के हिस्से में एक कवरिंग जैसा होता है विंडो में, that is called window blind. Taken down means pulled down, dismantled. Okay. There are some of the assignment which you have to do. I hope you got it. See here. The man in the moon came down too soon to ask the way to Norwich. He went to the south and burnt his mouth with eating cold fish for it. It's a small poem. ऐसे आपको ये इसके लिए दिया गया nursery rhymes and stories. When people, the man in the moon is mentioned in the many nursery. इस मैन इन द मून जो है वो सब मोस्टली नर्सरी छोटे बच्चों को जो राइम्स और स्टोरीज होते हैं उसमें सब मेंशन किए जाते हैं। उनको उनके लिए काफ़ी बच्चों को अट्रैक्टिव बना के पिक्चर्स भी उसके बहुत ही वंडरफुल्स होते हैं, ताकि बच्चे देख के खुश होए और जानने की कोशिश करें। तो इस तरह बच्चों के लिए किताबें वगैरह बनाई गई है रिलेटेड टू द मैन इन द मून। ओके, दैट वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।